Good afternoon, students. In last video, we have discussed about the structure and function of the heart and how the blood flow in the circulatory system. So in today's class, we will discuss about the double circulation, because in human, or you can say in especially we are discussing about the mammals, which consist of 4 chamber hearts. So in us, double circulation process form. डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये डबल सर्कुलेशन है क्या, ये हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यहाँ फिर से मैं सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बना रही हूँ. सो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स. लंग्स बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन सर्कुलेशन में भी इसको कंसीडर क्यों किया जाता है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन जो हो रहा है, गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है, उसमें कौन हेल्पफुल है? लंग्स आर आल्सो हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर द लंग्स एज वेल हियर. देन इट इज कनेक्टेड विद द हार्ट. I have told you with the help of pulmonary arteries as well as in pulmonary vein. Yes, in previous video we have already discussed about it. So here it is going to connect with the pulmonary artery as well as pulmonary vein. Then from heart, arteries and veins arise that reaches up to the tissues. With the help of capillaries, again exchange of gases takes place here. In previous video we have already discussed about these all things. So these are lungs, हार्ट. ये लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, ये राइट साइड लेके चलते हैं. हार्ट का लेफ्ट साइड है तो ये हमारा क्या हो गया? पल्मोनरी वेन. और इधर क्या हो गया? आर्टरीज, बिकॉज ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. राइट साइड है तो इधर क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी. पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं. एंड दीज आर द वेन्स. These are capillaries. Capillaries. तो हमें समझना है डबल सर्कुलेशन है क्या. यहाँ हमने क्या देखा? 2 टाइप्स का सर्कुलेशन विद इन अ सिंगल टाइम पीरियड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर. कैसे? एक लूप जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है? लंग्स टू हार्ट एंड बैक अगेन टू लंग्स. एक जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, क्या हो रहा है? लंग्स से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से वापस कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है. दूसरा जो लूप बन रहा है ब्लड सर्कुलेशन का, वो क्या बन रहा है? हार्ट टू कैपिलरीज, और यू कैन से बॉडी टिश्यूज, एंड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट. कैपिलरीज कहाँ स्प्रेड रहती है? इनसाइड द बॉडी टिश्यूज. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर बॉडी टिश्यूज. सो यू कैन सी हियर that in human 2 kind of circulation found within a single time period. One loop that consists that in which the blood flow from lungs up to the heart and again go back from heart up to the lungs, and another loop in which blood flow from heart up to the body tissues and again go back up to the heart. तो ये जो पहला लूप है जिसमें लंग्स से हार्ट तक ब्लड जा रहा है और वापस हार्ट से लंग्स तक आ रहा है, इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोल देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन. So it is first kind of circulation that is known as the pulmonary circulation. और second loop, heart through blood tissue and from blood tissue back up to the heart. That is the second kind of circulation that is known as the systematic circulation. Systematic circulation. So what is double circulation? Within a single time period, 2 times blood circulate within a heart or from the heart. That kind of circulation is known as the double circulation. The first is pulmonary circulation, in which oxygenated blood reaches from lungs up to the heart through the pulmonary vein, and heart again through the deoxygenated blood up to the lungs with the help of pulmonary artery. And the second kind of circulation is systematic circulation, in which the oxygenated blood from heart is pumped into the body tissue
with the help of arteries, and deoxygenated blood again go back from the body tissue up to the heart with the help of veins. So because two kind of circulation takes place here, that's why this process is known as the double circulation. तो अगर डबल सर्कुलेशन आता है आप क्या लिखेंगे, थ्रू द हार्ट टू काइंड्स ऑफ ब्लड या टू टाइम्स ब्लड फ्लो विद इन अ सिंगल टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन. इस कंसिस्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एज वेल एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और दोनों को आप डिफाइन कर देंगे. अब एक क्वेश्चन ये यहाँ अराइज होता है कि अगर डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा जो बॉडी डिजाइन है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है, हर एक चीज का कोई ना कोई रीजन है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डबल सर्कुलेशन, या इसका सिग्निफिकेंट क्या है. तो आपसे बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ डबल सर्कुलेशन. तो पहला जो सिग्निफिकेंट है बेटा वो क्या है, आप यहाँ देख सकते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अपना अलग सर्कुलेशन हो रहा है. इससे क्या है, इंटरमिक्सिंग ब्लड की नहीं होती. और इंटरमिक्सिंग ना होने से सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितने ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर आएगा उतने ज़्यादा अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने से एनर्जी ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एनर्जी फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए. फाइनली देन ओनली द एनर्जी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो जितना ज़्यादा एनर्जी फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्मूथली हो पाएगी. तो क्योंकि हम लोग बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं एनिमल्स, तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है. और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कैसे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक डीऑक्सीजनेटेड से सेपरेट रहता है, इंटरमिक्सिंग नहीं होती, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमको क्या मिल पाए, ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच पाए, और जिससे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो. सो इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन. अब यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन ह्यूमन में खत्म हो गया है, एनिमल्स में हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन प्लांट्स. So now I am going to tell you about the transportation process in plants. So we all are aware that in plants there is not a specific kind of circulatory system formed. कोई भी सिस्टम नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बल्कि स्पेसिफिक काइंड के वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. आप लोगों ने सुना भी होगा. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन प्लांट्स. So in plants no circulatory system found. कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, बल्कि इनके पास क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं. 10th में आपने पढ़ा है दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्यों होते हैं, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा था ना, क्योंकि वेरियस काइंड ऑफ सेल सेलुलर बने हुए होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. तो इनमें स्पेसिफिक काइंड के वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं. जाइलम क्या करता है, इट इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जाइलम इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, and phloem is helpful in transportation of food material that is synthesized by the green part of the plant with the help of photosynthesis process. तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल्स को. फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल का, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में सिंथेसिस होता है. हमने 9th में पढ़ा था कि जाइलम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर मिनरल्स का, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि रूट से और अप टू द टिप तक वाटर मिनरल्स को फ्लो करेगा. लेकिन फ्लोएम जो फ्लो करता है फूड मटेरियल को, डेट इज मल्टी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल. मान लीजिए मिडिल में कोई लीफ है, उसने फूड बनाया, तो वो फूड ऊपर भी भेजेगी और नीचे भी भेजेगी. तो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है डेट इज द बाई डायरेक्शनल, और जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है डेट इज द यूनी डायरेक्शनल. तो अभी तक 9th में हमने ये पढ़ा था. अब 10th में हमें क्या पढ़ना है, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एक हाइपोथेसिस दी गई है कि किस तरह से प्लांट्स में जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और किस तरह से प्लांट्स में फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है. तो इसके लिए जो हाइपोथेसिस हमें पढ़नी है वो क्या है, वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव थ्योरी. कोहेसिव
थ्योरी। और फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को जो एक्सप्लेन करता है वो क्या करता है, मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव थ्योरी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो पहली चीज, ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेसिव थ्योरी किसको सपोर्ट करती है? इट सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ जाइलम। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव थ्योरी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मास फ्लो हाइपोथेसिस। Cohesive theory that explain the transportation of water and minerals. No, कितना टाइम का बना है? So here दो चीज़ें हमें यहाँ कंसीडर करनी है। पहली चीज़ ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा कोहेसिव थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिस्कस इट। ट्रांसपिरेशन हमें पता है प्लांट्स में वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर की फॉर्म में क्या होता है, सॉरी वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट बॉडी से आपका रिमूव होता है या रिलीज होता है। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर इवेपोरेट, और आप कह सकते हो रिलीज फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमें पता है प्लांट की बॉडी से कुछ वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। दैट प्रोसेस नोन एज द ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज जस्ट लाइक द स्वेटिंग दैट अकर्स इन अस। हम लोगों में स्वेटिंग क्यों होता है? टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। उसी तरह से प्लांट्स कौन सी प्रोसेस करते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम लोगों को जितनी गर्मी लगती है उतना स्वेटिंग ज़्यादा होता है, और जितनी स्वेटिंग होती है उतनी हमें क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इन द सेम वे हैपेंड इन द प्लांट्स। जितना ज़्यादा इनको गर्मी लगेगी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो इनको क्या होगा, पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पानी कहाँ से आता है? रूट से आता है। तो इसकी प्लांट सेल्स क्या करेंगी, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक पुलिंग फोर्स जनरेट करेंगी रूट्स के अंदर। इस पुलिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स। तो ड्यू टू दैट पुलिंग फोर्स वाटर क्या होगा, रूट से ज़्यादा अमाउंट में एब्सॉर्ब होगा एंड रीचेस अप टू द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, दैट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स। दूसरा है कोहेसिव थ्योरी, जो आया है आपका कोहेशन फोर्स से। सो देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस फाउंड। एक होता है आपका कोहेशन फोर्स, दूसरा होता है adhesion force. There are two type of forces found, cohesion as well as adhesion force. कोहेशन फोर्स होता है अगर एक ही सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है, सब्सटेंस एक ही है और उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज द एडिशन फोर्स। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, बोर्ड किससे बना है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो इस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, जिससे कि सॉलिड फॉर्म में है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोहेशन फोर्स। अब मैं यहाँ पे मार्कर चला रही हूँ, मार्कर इस पे क्यों चल पा रहा है, क्योंकि मार्कर और इस बोर्ड के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स जनरेट हो रहा है। तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन फोर्स। तो वाटर एक करंट में, वाटर करंट की फॉर्म में क्यों ऊपर चढ़ता रहता है, या आपने देखा होगा, आपने टैप खोला तो ऐसा तो है ही, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आता है। कैसे आता है, एक वाटर करंट की फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, कोहेशन फोर्स प्रेजेंट है। तो वाटर करंट को प्लांट्स में मेंटेन रखने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कोहेशन फोर्स। So due to that force also the water and minerals easily reaches up to the tip of the plant. क्योंकि ये फोर्स क्या करता है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल पानी का ऊपर चढ़ा, उसने टाइटली दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है, वो उसको ऊपर की साइड पुल कर लेगा। तो यहाँ क्या है, एक तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस और दूसरा कोहेशन फोर्स दैट इज फाउंड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दीज बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है थ्योरी को, पहले आप बताएंगे ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से
क्या आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द प्लांट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर दैट did absorb by the roots with the help of by generating the transpiration pull force, and between the water molecule the cohesion force formed so that water move within a single current from the root up to the tip of the plant. So due to the presence of transpiration process as well as cohesion force between the water molecule, the water and minerals reaches up to the tip of the plants from the roots. तो ये आप पूरा एक्सप्लेन कर दो। सेकेंड जो है आपका हाइपोथेसिस दैट इज द मास फ्लो हाइपोथेसिस, और मास फ्लो हाइपोथेसिस किसको एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है आपका फूड के ट्रांसपोर्टेशन का। मास फ्लो हाइपोथेसिस, बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं, इसको हम सोर्स सिंक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं और इसको मुंच हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ द साइंटिस्ट नेम मुंच हाइपोथेसिस। इसको जो दिया था वो अर्नेस्ट मंच ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मंच। ही हैज गिवन द मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या बताता है? ये आपके फूड के ट्रांसपोर्टेशन का बताता है, किस तरह से फूड प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने जा रही हूँ। सपोज ये वो सेल है प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। कोई भी लीफ है जो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होने से क्या होगा? यहाँ पे फूड की सिंथेसिस होगी। तो इसको हमने क्या बोल दिया? सोर्स बोल दिया। इट इज द सोर्स ऑफ द फूड। और ये वो पार्ट है प्लांट का जहाँ पे इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, जिसको हमने क्या बोल दिया? सिंक बोल दिया। तो किस तरह से सोर्स से सिंक तक फूड आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक्सप्लेन कौन करता है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये है आपका जाइलम टिश्यू एंड इट इज द फ्लोएम। क्योंकि सारी सेल्स क्या है? सारी सेल्स कनेक्टेड रहती हैं जाइलम से एज वेल एज फ्लोएम से। अब यहाँ क्या हुआ, ध्यान से सुनना है। ये कोई लीफ है, इसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म किया और फाइनली यहाँ क्या हो गया? फूड फॉर्मेशन हो गया। तो जब फूड फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ, इट रिमेन्स इनसाइड द सोर्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। यहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर शुगर, और यहाँ जाइलम में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो आपका वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम जाइलम अप टू द फ्लोएम, सॉरी जाइलम अप टू द सोर्स। लीफ तक वाटर मूव किया। जैसे ही वाटर आपकी लीफ में आया, ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व हो गया, और ये किसकी फॉर्म में आ गया? सैप की फॉर्म में आ गया। सैप कहते हैं प्लांट के फ्लूइड को। सो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द सैप फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ आ चुका है, और ये क्या है? फ्लोएम टिश्यू है। और फ्लोएम टिश्यू किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड मटेरियल को। तो हमेशा क्या होगा? सैप में कंसंट्रेशन इसकी क्या है? पानी की आपकी यहाँ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द फ्लोएम। सो ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, आप देख सकते हैं यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ से यहाँ सैप आगे की साइड फ्लोएम में मूव करता रहता है। जैसे जैसे आगे मूव करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप होता जाता है, एंड फाइनली इट रीचेस अप टू द सिंक। तो यहाँ पे क्यों है ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन एट बोथ लेवल। सबसे पहले सॉलिड जो फूड है वो जाइलम के थ्रू ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से ही जाइलम से वाटर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू और सोर्स में चला गया। यहाँ लिक्विड फॉर्म में सैप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फूड, एंड ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रेडियंट, यहाँ ज़्यादा है अमाउंट, यहाँ कम है, हायर टू लोअर अमाउंट मूवमेंट स्टार्ट होगा, और फ्लोइंग के थ्रू सोर्स से पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कहाँ पे पहुँच जाएगा? फूड फाइनली इन द सिंक। सो इट इज नोन एज द मास फ्लो हाइपोथेसिस, या इसको और हम क्या बोलते हैं?